नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। आइए देश की राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के द आस्था सरोवर पोर्टिको में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कैन किड्स कैन ने अपार हेल्थ के सहयोग से ऐतिहासिक पैसर क्लिनिक रिसर्च के लिए मरीज अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जो मरीज केंद्रित क्लिनिक रिसर्च की परिवर्तनकारी शक्ति का एक मार्मिक प्रमाण है। प्रतिष्ठित डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और मीडिया विशेषज्ञों की एक आकर्षक गोल में चर्चा के माध्यम से हमने सामूहिक रूप से नैतिकता, पारदर्शिता और मरीज वकालत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने की अनिवार्यता को रेखांकित किया। इस गहरी समझ के साथ कि जनता का विश्वास सर्वोपरि है, हमारे सम्मानित पैनलिस्टों ने शोध को रहस्यपूर्ण बनाने, पहुंच बढ़ाने और क्लिनिक परीक्षणों में उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने की रणनीतियों पर जोश से विचार विमर्श किया। सम्मेलन ने एक स्पष्ट आह्वान के रूप में कार्य किया, जिसमें चिकित्सा सफलताओं को आगे बढ़ाने और विश्वास, सहानुभूति और सहयोग के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में मरीज वकालत की अपरिहार्य भूमिका पर प्रकाश डाला गया। जैसा कि हम जीवन परिवर्तनकारी उपचारों और चिकित्साओं के विकास में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी तरह पैसर सम्मेलन ने रोगियों को नैदानिक अनुसंधान में सबसे आगे रखने के महत्वपूर्ण महत्व की पुष्टि की। यह सुनिश्चित किया कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए और उनकी आशाओं को प्रज्वलित किया जाए। इस सम्मेलन के आयोजक निर्भय सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम कैन किड्स, डॉक्टर पूजा शर्मा, CEO अपार हेल्थ, Mrs. Poonam Bagai, founder of Can Kids Can, a National Society for Change for Childhood Cancer in India. धन्यवाद। I think that is very important thing, because if I am a survivor and I am willing to be participate in the team research team, but I don't know the terminology, I don't know the fancy language which you use as scientifically to prepare the abstract, or what is the abstract means. This was an example I was throwing on my table. When I started my first research, I was told to write an abstract to submit for a conference, for an international conference. I wrote an essay. मुझे नहीं पता था कि abstract होता क्या है, but literally I learned through my experience. So this is what I think has to be done. What are the steps included in? What are the terminologies I should be aware of? Who will explain me? That is an important question from the team. Aggregation of information on clinical trial in India. In a simplified version, there has to be some application which all of you have already told. This is a practical thing which we can do in the world of technology and AI. There should be a web portal or application where not just CTRI, if we say a simplified version. For example, I know Candidates as an organization, but that organization doesn't have the some section on their website where I can go and check what are the clinical trials done for the leukemia or lymphoma, where I can contribute as a survivor, or I can encourage more survivors from my community to be part of it from Pan India, right? Because I lead the survivor group, so I should know, and I should deliver that information and make awareness about it. Frequent notification about the research growth to the participant. I think this is most important thing when it comes to respectfully being participant as a patient advocate to the research team, or as a clinical trial अगर आप उसमें participate कर रहे हो तो there should be nudge, or there should be a notification coming to it. Okay, we have done the first phase of writing, or we have cleared the ethics committee approval, or we are into the process of approval. There is a
thing that is need to be redo it. उसको पैरालिसिस हो गया एंड देन ओवरीज एडनिक्सिया बोन्स एवरीवेयर एंड शी वाज इनटू पैरालिसिस। ये 1 जनवरी को ये मेडिसिन हुआ था 2017 को। सितंबर में एक पिंकाथन करके होता है मिलिंद सोमन का, कुसुम रैन मैराथन आफ्टर 9 months वियरिंग ए टी शर्ट। और वो मेरी एक वेबसाइट है राइज टू सर्वाइव कैंसर, जिस नाम से मैं काम करता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। राइज टू सर्वाइव कैंसर अबाउट अस पेज में जाना, यू विल गेट लो टू अबाउट इट। एंड उस पर उसने टी शर्ट पहनी थी स्टेज 4 सर्वाइविंग 5 years विद हेल्प ऑफ होप लव रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल। और उसने वहाँ पे मैराथन रन की थी 9 months बाद। एंड देन लोड अदर पेशेंट कुड दैट थिंग। और ये स्टोरी चली, वी ब्रिंग 6 क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। और इम्पैक्ट ये था कि एक कंडीशनल अप्रूवल हुआ था यूएस में 11 लाख पर मंथ की कॉस्ट थी मेडिसिन की, जब हमने वहाँ से परचेज की थी। इसमें हमारी अपनी सब प्रॉपर्टी भी गई थी लाने के लिए। फिर हमने वो ट्रायल लेके आए वहाँ पे, फेज 2 फेज 3 ट्रायल लेके आए और कंटिन्यू काम करते रहे कंपनी और गवर्नमेंट के साथ में। अब वो मेडिसिन अंडर पेशेंट असिस्टेंट इंडिया में 30,000 रुपीज़ पर मंथ में। So million patients are getting saved today because of that Kusum. And this is last month, उसके बर्थडे पे 15 जून को मैंने रन किया था इंडिया गेट पे with that raising awareness and clinical research. मैं before I close, I know I have short time, मैं ये बात को कहना चाहूँगा कि research clinical trial is not only about science. Research is about hope. A hope to give a chance to patient and families to fight, a chance which every family deserves. Research it. The best part is when you are not prepared and you speak from the heart. So I'll try to speak from the heart. So yeah, so I have been a clinical researcher for 25 years now, and but I always wanted to be part of how does actually a participant feel, and I always wondered, but I never I mean, see, knowing how they feel and realizing how they feel is very different. So the opportunity came during COVID time. So I got a call from Batra Hospital to participate in the Sputnik V phase 3 registration study. So I grabbed that opportunity. But once I started, whether I should go and think that time, that during this second wave, there was the fear of going out, and then the fear was everywhere. So one point that I would like to add, and I know that Anirban is a part of the industry along with myself. I do not know if there are any more industry representatives in the group here, Vijay, you are as well. You need to understand that clinical trials, you need more clinical trials within the country to come to the country. There are multiple trials running across the world, and we are not seeing even a minute fraction of that. So that is something that we have to talk about, and let that be the topic of our next discussion, because there is the need to attract more trials to the country. You are, the more that you are able to bring in, the more patients who can access this. And that is where I would like to work with you along as an industry representative. Thank you. Thank you so much. This particular statement that patient awareness, education, attitude, psychoanalysis and outcomes are the only things that matter in a clinical trial. When we talk of patient centricity, these are the points that should be the forefront points that should be on a checklist. Is the patient aware? Is the patient educated? Is the patient It's the practical solution. ये तो क्या ज्ञान? इसका मेन यही है कि तुमने बताया क्या? कंटेंट अवेयरनेस, मतलब we need people who can actually help with that. We need dedicated people. For example, Okay, so we need dedicated people, and to all those people who have a lot of money sitting here, please put the money. So put those dedicated people.
let's hear it for some money. So here is money. I'm going to say thank you for the money now. I meant it in a way that It's always a fundraiser. It's always a fundraiser. So no, but I would take 1 second and then thank Dr. Bhavna here. Dr. Bhavna is going to be one of the where I think her inspiration. We spoke on a very small. She had a patient centricity webinar that she spoke on, and we connected on that, and she has immediately spent a whole Saturday with us. So thank you so much, Dr. Bhavna, and I really hope that this message translates and reverberates with you, so and that you continue to join and support the effort that PACER is. So thank you so much, Dr. Bhavna. So this हमारी पूरी टीम आपको सबको थैंक्स करती है और थैंक्स टू कैंडिडेट्स किड्स कैन कि आपने हमें इनवाइट किया। फर्स्ट टू क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलियर हैं, तकरीबन सभी ग्रुप्स में डिस्कस हुई है, जैसे कि लैंग्वेज की बात। तो हमारी टीम ने भी उसी पॉइंट को सबसे पहले रखा कि जो भी क्लिनिकल रिसर्च की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत मेन रोल है, तो इसलिए उसमें रीजनल लैंग्वेज को इंक्लूड करके हमें चलना चाहिए। कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी हम लोग कंपाइल कर पाए, क्योंकि अभी हमारे और भी साथी वेट कर रहे हैं। उसके बाद में है जो सेंटर्स है उसकी एक्सेसिबिलिटी, यानी कि वहाँ पे पहुँचना आसान होना चाहिए, और वहाँ पहुँचने के लिए जो बैरियर्स आते हैं, जैसे उनको वेट करना या कन्वेंस या बाकी चीज़ें, उन चीज़ों को वो प्रॉपरली सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि वो इजीली पहुँच पाए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अवेयरनेस सिर्फ इतनी ही नहीं हो कि आप एक क्लिनिकल रिसर्च का पार्ट बन रहे हैं, बल्कि अवेयरनेस इस चीज़ पर भी होनी चाहिए कि बन रहे हैं तो क्यों और उसका आउटकम क्या होगा। तो वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें विजुअलाइज एड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो भी चीज़ें, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है ये चीज़ें, कि जिस चीज़ को हम कानों से सुनते हैं या आंखों से पढ़ते हैं, उसकी बजाय जो पिक्चर फॉर्म में हम देखते हैं वो एक लंबे टाइम तक हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो इसलिए विजुअल एड्स पे हमें फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अवेयरनेस के लिए हम इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करें। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि तंबाकू इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, तो मैं वहाँ एक पिक्चर दी होती है, उसके नीचे कोटेशन लिखी होती है। तो इस टाइप के कि आप क्लिनिकल रिसर्च का पार्ट बनिए, ऐसे डिस्प्लेज, ऐसे बोर्ड्स जो है वो हॉस्पिटल्स प्रेमिसेस में या बस स्टैंड्स पे या ऐसे पब्लिक जगह पे लगाने चाहिए, जहाँ लोग उस वर्ड को पढ़ें और वो पिक्चर उनके दिमाग में बैठ जाए और लोग अवेयर हो सकें। कि हम मूवीज तो देखते हैं तो उसमें ऐड आती है ना, धूम्रपान ये है, वो हार्ट डिजीज ऐसे है, वैसे अगर एक रिसर्च की 30 सेकंड क्लिप बिफोर एवरी मूवी, देन इमेजिन क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये मेरे को एक ये भी ऐड करना था कि रिसर्च जो है ना, जो ट्रस्टवर्दी एंड इजी लोगों को समझाने के लिए उनके लोग ही बताए तो बेटर रहेगा। तो मतलब ट्रेनिंग द ट्रेनर्स वाली बात हो गई, एट ग्राउंड लेवल, जैसे आशा, आंगनबाड़ी वर्कर जो रोज लोग से मिलते हैं, उनको अगर रिसर्च का इंट्रोडक्शन दिया जाए, वो समझा पाए तो बेटर रहेगा। First of all, thank you, Pooja ma'am, for inviting me to attend this. I've always been with the industry in the commercial side, and this is the first opportunity when I'm meeting so many, patient advocacy group representatives, so many patients. It's really nice to hear from them. In fact, during the roundtable discussion, I thought there was so much for me to learn from all their, experiences, all their thoughts, and all the work that they put in. So thanks again for this, and I'm sure I'm going to be involved with you, participating in many more such events. I also would like to just bring up that there is a lot of interest in big pharma also to really support in patient advocacy groups. I've been meeting a lot of clients who I know, yes. So we're going to do that. I think, like you mentioned, Pfizer, there are other big pharma companies who want to fund, and I think funding and money is critical to kind of organize and spread the word. So that's something that we will, of course, do together. But thanks so much for giving this opportunity. I call myself a survivor. I like to call myself a winner. I was diagnosed in 2000. So what we started after I was diagnosed with cancer, I came upon some people like Mr. Dilip Mewada, and there was one more
young guy, Mr. Rahul Yadav, and we started a WhatsApp group, support group for patients. And I would like to tell all of you a little bit about it, because when this is the time around 2012-13, when these people were diagnosed, both Mr. Mewada and Mr. Rahul Yadav, I had finished about 12 years of my journey with cancer, with myeloma there. And we met, and I met Mr. Rahul first, and he was the one who said that there is no information about different cancers, and where do you look? There was not much of Google information that time, and doctors did not have that much time to spend with you and give you more information. So we just decided to start a support group. And over a time, first we started a myeloma group, Yodha's myeloma group, and then we started for organ cancers. So we have 3 groups from Yodha's, and then we met with Mr. Mewada and we started the myeloma friends group along with that with the Yodha's. So we have merged. But the point is that in these groups, we get to have a one-on-one interaction with most patients. What do they require? What are their needs? So at that level, it is really like how our clinical trials, etc. also. So lots of patients, we get lots of patients who come to us and say, "Ma'am, this clinical trial, should we go in for that?" So at that time, they are scared because they also feel they are going to be made guinea. And my answer to them is always one: you have reached that stage of clinical trials because there is no other option available. So please take it. Please take it. At least, we are helping, by going to these trials, we are helping get better drugs for our patients also. And as he highlighted that there are very few clinical trials which are going on in India, and like Dr. Avasthi, she said that. So what we can do is, PACER is on a big forum, and when it gets invited to these government talks, etc., that is the point where we can put forth, that's the purpose of today's meeting, to take down the points so we can raise these. क्या होता है कि आप ड्रग नहीं दे रहे हो, आप बस एक शुगर पिल दे रहे हो, उससे भी बंदे को वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो ड्रग दे के मिल रहे हैं. इट्स टेक्निकली मैजिक. So there is no doubt that yoga and meditation clinical trials में बहुत important है. And why should we be westernized? इतना वेस्टर्नाइज क्यों है? इंडियन चीजों पे भी फोकस कर सकते हैं. सेकेंडली, टॉक अबाउट CTRI वेबसाइट. डोंट यू थिंक दैट वेबसाइट में 2 सेक्शंस डिफरेंटली हम बना सकते हैं? एक सेक्शन बहुत ज्यादा टेक्निकल लोगों के लिए, लाइक जब मैं अपना रिसर्च पेपर लिखता हूँ तो मैं clinicaltrials.gov पे जाता हूँ, डायरेक्ट जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं उनसे डेटा उठाता हूँ और उनको एनालाइज करता हूँ. तो अगर किसी को इंडियन ट्रायल का डेटा उठाना है तो उसके लिए आप एक डिफरेंट सेक्शन बनाओ. और अगर किसी कॉमन बंदे को जाके बस अपना आप कोई बंदा है उसको कोई डिजीज हुई, डॉक्टर ने उसे कंसल्ट करा. वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज ट्रस्ट ऑन डॉक्टर्स. के इंडियन पेशेंट्स डॉक्टर्स पे इमेंस ट्रस्ट करते हैं. इमेजिन कि लेट्स जैसे मैं हूं, मुझे एक डॉक्टर बोलेगा आई वुड थिंक यार ठीक है सेकंड ओपिनियन ले सकता हूं मैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे विल नॉट थिंक ट्वाइस. व्हाटएवर देयर डॉक्टर सेज कि क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल करना है, आप एनरोल करो. Like a lot of people, they are not aware कि हाँ consent क्या है, clinical trials कैसे हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा technical details उन्हें नहीं पता है. उसकी awareness के लिए भी हमने discuss करा कि आप content पे काम कर सकते हो. कंटेंट बनाना है. And a lot of companies are working on content कि आप basically सब लोग आजकल reels ही देख रहे हैं. लोगों के पास घूमने फिरने का. इस पे आई रिक्वेस्ट कि जो ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके पास ये ब्रिलियंट आइडिया है वो रील बनाएं. एक्चुअली ये बोलना बड़ा अच्छा होता है, रील बनाओ. पूजा को रील बनाने बोल देते हैं लोग, बनता ही नहीं है मेरे से. तो प्लीज आप लोग रील बनाओ और मेरे को कम से कम इस मीटिंग के बाद 50 रील मिलने चाहिए खुशबू को. तब तो ये लेक्चर का मतलब. अब तो हमें इंसानों की जरूरत नहीं रील बनाने के लिए, AI रील बना देता है. AI की रील बहुत गंदी होती है. अच्छी रील बनाओ, ह्यूमन रील. ओके, तो हम रील्स बनाएंगे और YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे अपना. जितने भी डिफरेंट पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, हमारी कंपनी है पेसर, वी कैन जस्ट मेक अ यूट्यूब चैनल. उस पर सिर्फ कंटेंट हम जनरेट करते हैं, उससे अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो टॉक अबाउट DCT बिकॉज सर हियर वो अपनी खुद की DCT कंपनी ओन करते हैं, व्हिच इज बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स. सो DCT के बारे में भी यू ऑल कैन गो होम, यू कैन रिसर्च अबाउट इट. कि बेसिकली एक पर्टिकुलर सेटिंग में ही सिर्फ ट्रायल नहीं होना है, ट्रायल घर पे भी होना है. लाइक मैम आल्सो गिव मी अ ब्रिलियंट पॉइंट
कि बहुत सारे ट्रायल्स अब इतने लॉन्ग टर्म है और दवाइयों वाले हैं कि आप उन्हें कंट्रोल सेटिंग में नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम्स पे आपको अपने घरों पे भी जाना पड़ेगा, पेशेंट्स के घरों पे भी जाना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस करा। एंड बेसिकली वी केम विद पेशेंट अवेयरनेस, एजुकेशन, एटीट्यूड, psychoanalysis and outcomes. Pretty self-explanatory as sir said. So I would like sir to add some few points of his own as well. आज मैं मौजूद हूँ ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के द आस्थान सरोवर में, जहाँ पे जो है कैन किड्स और किड्स कैन, ये जो सोसाइटी है इसके द्वारा जो नेशनल सोसाइटी फॉर चेंज चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया, मतलब कि ये जो सोसाइटी जो है कैंसर पेशेंट्स के ऊपर जो है रिसर्च कर रही है, जो बच्चे जो है उनके लिए काम कर रही है। आइए हम यहाँ पे जो मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सोसाइटी किस प्रकार से काम कर रही है और किस लिए कर रही है। ठीक है, आइए हम उनसे बात आज इन वेरी शॉर्ट हमने अराउंड more than 500 employees and we have more than 600 volunteers तो अगर आप से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे, और हमारा होलिस्टिक केयर से क्या मतलब है कि खाली जिनको पहुँचने पे इलाज और दवाई नहीं, उसके अलावा जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, वो आइडेंटिफाई करते हुए और जैसे दवाई, इलाज, डायग्नोस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि आपको एक बच्चा सड़क पे ना सोए, क्योंकि अगर कई बार फैक्ट है, डॉक्टर्स कैन ऑल्सो से दैट अगर बच्चा कैंसर से नहीं बन जाता ज़्यादातर टाइम और इन्फेक्शन कहाँ होगा, बाहर के बाहर। सो वी हैव ओपन्ड अराउंड 18 होम अवे बच्चे परिवार के साथ और इन इन्फेक्शन से लड़ सकते जाना है, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में और दूसरा जो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी, सरकार इसके बारे में काम कर रही है, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में काम कर रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके मीडिया, न्यूज़पेपर और हमसे ये पहुँचाना है कि बच्चों के कैंसर का इलाज है, सही जाँच, सही अस्पताल पहुँचने पे आज हम more than 60% कैंसर पर मानते हैं, वर्ल्ड वाइड 90% मिलके इस लड़ाई में साथ में लड़ना है और बहुत सारे बड़े स्टिग्मा ठीक है।
बच्चों का नहीं है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे मुश्किल भी है, आपको को डिनाई नहीं करूँगी। काफ़ी सारी क्रॉनिक डिजीज इसीलिए लाई करती हैं कि वो मुश्किल होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इलाज नहीं करा, तो फिर कैंसर का भी इलाज नहीं करेगा। आप बाहर जाके किसी एक तो मैंने जैसे बताया कि मैं सोनी शर्मा हूँ और मैं एक को-फाउंडर कैंडिडेट उसके अलावा और उन्होंने डॉक्टर सलीम बख्शी जो बच्चे सुना उनके साथ सारे उनके साथ हाथ पकड़ने का जो हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है यहाँ द लोन ऑफ कैंडिडेट्स, so I support that and for that I am standing for every parent मीडिया ने गलत धारणा पैदा कर रखी है कि रिसर्च में आप जाने से क्लिनिकल हो जाते हैं या आप जो है उसमें आपको गलत ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे आजकल कोविड वैक्सीन का चल रहा है कि वैक्सीन पे ट्रायल है, वो सब है। इस चीज़ की धारणा को हम करेक्ट करते हैं कि नई दवा नई ट्रीटमेंट रिसर्च से आएगी। तो इस एफर्ट में हमारे साथ कैंडिडेट्स के साथ हम काम करते हैं। हमारे साथ 25 और पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स हैं जो कि डायबिटीज़ के एरिया में काम कर रहे हैं, अलग तरह के कैंसर्स में, माइलोमा में काम कर रहे हैं, किडनी डिजीज में काम कर रहे हैं, बहुत सारे और कैंसर्स में भी काम कर रहे हैं ताकि ट्रीटमेंट राइट एंड नया ट्रीटमेंट इजाद हो। जब तक कोई रिसर्च में पेशेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो भागीदारी नहीं लेगा, तो कैसे नया ट्रीटमेंट आएगा? हम वही करते रहेंगे, वही पेशेंट जो 60% मैडम कह रही हैं वही 60% पे रह जाए, 90% 95% कैसे पहुँचेंगे जब तक नया ट्रीटमेंट। तो ये हमारा विजन है, इसके लिए आज का इवेंट था। इसमें हमने 3 तरह के लोगों को बुलाया, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पेशेंट्स भी हैं और आप जैसे सोशल मीडिया के लोग, ताकि मीडिया का भी परसेप्शन पूरा चेंज हो कि रिसर्च अच्छी चीज़ है, रिसर्च में हिस्सा लेना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर माय इस इवेंट में 30 पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, कैंडिडेट एक पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप है, ऐसे 30 ग्रुप्स हैं। हमारे पास कम से कम 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अनिर्बन भी हैं जो इंडियन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल रिसर्च में हैं, उसके सीनियर पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट। वो मतलब पूरी इंडिया में जो रिसर्च कंपनीज हैं, ग्रुप्स हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट। तो आप समझ लीजिए कि लिटरली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट पार्टिसिपेशन हर एक तीनों के साथ होगा, अकेले नहीं कर सकते। पेशेंट सो इन्होंने जो कहा है आज रिया ने बहुत अच्छी चीज़ कही है, आप बोलना चाहोगे? एक लाइन है, रिसर्च में भागीदारी स्वस्थ भारत की जिंदगी, ये हमारा आज का इवेंट था। जो भी स्वस्थ रहना चाहेगा उसको रिसर्च में हिस्सा लेना चाहिए। इस इवेंट और लोग देख पाए कि इस इवेंट में काफ़ी यूनिक चीज़ की है, डॉक्टर के साथ गया है, पेशेंट एडवोकेट को भी गया है, मीडिया को भी गया है और बहुत सीनियर लोग भी है और एक
प्रेशर भी नहीं, तो कैसा इंटरेक्शन हुआ, जो आइडियाज आए हुए वो आगे काफ़ी दर्शकों ने भी सुना कि किस प्रकार जो है रिसर्च की जा रही है कैंसर के ऊपर और उसके प्रति जो दवा मेडिसिन जो ला रही है मार्केट के अंदर कि किस प्रकार से वो प्रभाव असर करेगा। मैं अपने सहयोगी शोभा के साथ अमित झा, टुडे न्यूज़ 24।